Hello friends, how are you? I am sure you might be having a great time. Welcome to our podcast Gossip Chopal and I am your host CM त्यागी. आज के इस एपिसोड में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हर एक को अफेक्ट करता है एंड दैट इज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस फॉर हेल्थी लिविंग. आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस and how stress affects our health and life, and also how to handle it for a healthy lifestyle. Well, stress is part of everyone's life, and it is important to understand how to manage it to live a happy and healthy life. अगर definition की बात करें तो technically speaking, stress is a physiological and psychological response to a perceived threat or demand. It is a normal part of life. ये हमारे life का normal हिस्सा है. And our bodies are equipped to respond to stress in certain ways. When we experience stress, our bodies release stress hormones जैसे कि cortisol and adrenaline, which can prepare us for a fight or flight response. वैसे stress अगर थोड़ा होना तो ठीक है, it helps you in your life. But if it becomes too much, that is, it becomes a chronic stress or stress that is too intense, it can have a negative effect on our physical and mental health. There are different types of stress. मतलब स्ट्रेस अलग अलग तरीके होते हैं सच एज एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस जो होता है ना, इट्स अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स दैट हेल्प्स अस डील विद एन इमीडिएट सिचुएशन. Whereas episodic acute stress is when someone experiences frequent acute stress episodes, while chronic stress is a long-term stress response that can have negative effects on physical and mental health. इसमें जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है. अब ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस हमारी हेल्थ और लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है. स्ट्रेस कैन हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसके साथ साथ स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्लीप प्रॉब्लम्स. Therefore, it is very important and essential for us to learn how to handle stress for a healthy lifestyle. To manage stress effectively, it is important that we adopt best practices. अब इसके 2-3 तरीके हैं. सबसे पहला जो मैं कहूँगा वो होगा that is to identify the source of stress. Identifying the source of stress can help to manage it effectively. It is definitely a on thing. Once the source of stress is identified, it can be easily addressed. इसके अलावा you can set achievable goals. Setting achievable goals can help to manage stress. It is important to break down goals into smaller and manageable steps. तो इससे क्या होगा कि ऊपर प्रेशर नहीं आएगा. प्रेशर आपका स्ट्रेस में तब्दील नहीं होगा. आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे. Also, you can practice self-care. Self-care is important for managing stress. It goes without saying. Engaging in activities that brings joy to you and relaxation can help to reduce the stress levels. You can also seek support. Seeking support can help to manage stress. Talking to family, friends, or a professional like a psychologist can provide a sense of community and reduce feeling of isolation. Well, stress can be handled and can be handled effectively for a healthy lifestyle. To handle stress for a healthy lifestyle, there are various ways and means you can try. You can choose the one which works best for you. Some of the methods which I am going to discuss now are exercise. Well, इसके बारे में अब और ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं. एक्सरसाइज आजकल हम काउच पोटैटो बन गए हैं. हमें अब अपना आराम पसंद हो गए हैं. बाहर जाते नहीं है, खेलते कूदते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा. वेल, इफ यू आर नॉट डूइंग इट, प्लीज स्टार्ट. कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना. रेगुलर एक्सरसाइज इज एन इफेक्टिव वे टू मैनेज स्ट्रेस. Exercise release endorphins which can help to reduce stress levels. It is a scientific way where everybody, आप किसी से भी बात कर लो, वो आपको यही सलाह देगा कि आप एक्सरसाइज करें. इससे आपका वजन कम होगा, आपकी लाइफस्टाइल डिसीज पे बहुत फर्क पड़ेगा और आपका स्ट्रेस कम होगा. एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स योर फिजिकल हेल्थ. आप अच्छे लगोगे, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा लगेगा. एंड इट कैन हेल्प टू हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ. इसके अलावा स्लीप. वेल, इसकी इम्पोर्टेंस तो मैं बिल्कुल भी इसके बारे में ज्यादा कहूंगा नहीं. आजकल हम सभी को पता है हमारी स्लीप हैज एक्चुअली गॉन फॉर अ टॉस. और अगर एक चीज जो मैं कहूंगा, एक बात जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें रेस्ट चाहिए. रेस्ट के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है स्लीप. आजकल हमारी स्लीप हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई है. जहां कहा जाता है कि दिन में आपने कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है, तो आजकल हम बड़ी मुश्किल से 5 या 6 घंटे भी अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं. Now, because of lack of sleep, it is affecting our lifestyle and which is translating into stress. Goes without saying, getting enough sleep is important for managing stress. Lack of sleep can increase stress levels and make it harder to cope with stress.
इसके अलावा आप मेडिटेशन और योगा भी ट्राई कर सकते हैं। Meditation and yoga are practices that can help to reduce stress level to a very great extent. These practices can help to improve focus, mood and overall well-being. You can try music therapy also. Listening to music can help to reduce stress levels. It is a proven method. अच्छी सॉफ्ट जो आपके मूड को भाती हो, आपको पसंद हो, आप ऐसी म्यूजिक सुने, आपका डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्लो एंड कामिंग म्यूजिक कैन हेल्प टू लोअर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इसके अलावा you can also reach out to a psychologist. Talking to a psychologist or counselor can help to manage stress, definitely. They are effective. They are a very effective way of addressing the problem of stress. Psychologists can help to identify the source of stress and provide coping strategies which you can then apply to find a remedy to your stress. Well, healthy diet is a very important aspect that we need to look into, and it definitely helps in addressing the issue of stress. Eating a healthy diet can help to manage stress. अब होता क्या है, आजकल हम लोग जंक फूड और फास्ट फूड पे बहुत ज्यादा रिलाई करने लग गए हैं। ये आप सबको पता है कि ये जंक फूड और फास्ट फूड आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ अफेक्ट होती है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, जिससे कि आपका स्ट्रेस बढ़ता है। A healthy diet can definitely improve physical health, which can then have a positive impact on mental health. इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। आपने देखा ही होगा, योगी पुराने जमाने से कहते हैं ना कि वो लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। उससे क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी जो हार्ट बीट और पल्स रेट वगैरह कम होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है। दीज एक्सरसाइज कैन हेल्प टू स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। इसके अलावा आजकल भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, हर एक के पास टाइम कम है, आपकी डेडलाइंस आ रही हैं, अब समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। सो टाइम मैनेजमेंट इज वन एस्पेक्ट विच डेफिनेटली इज सिनोनिमस विद स्ट्रेस। सो टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। Effective time management can help to reduce stress levels. Prioritizing tasks and setting achievable goals can help to manage stress. इसके अलावा जिंदगी जो है सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी है, आपने अपनी जिंदगी में पॉज भी देना है। कोई भी चीज लगातार नॉन स्टॉप काम नहीं कर सकती। आपने वो बेल कर्व के बारे में तो सुना ही होगा ना, चीज नीचे से ऊपर जाती है, हमेशा ऊपर नहीं रहती और नीचे भी आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, तो आपको ब्रेक लेना जरूरी है। आपने ब्रेक लेना होगा। उससे क्या होगा कि आप रिज्यूनेट होंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। साथ में आपकी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम में, अपनी लाइफ में समय समय पर ब्रेक लेते रहें। इससे यह होगा कि आपका स्ट्रेस काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वेज ऑफ एड्रेसिंग स्ट्रेस इन आवर लाइफ इज टू हैव सम गुड हॉबीज। उससे क्या होता है कि आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, आप वो काम करते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है, खुशी होती है। अब जब आप उस स्टेट में होते हैं ना, तो आप ऑब्वियसली काम होते हैं, पीस होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस भी नीचे हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट दैट प्लीज एंगेज इन हॉबीज दैट कैन हेल्प टू मैनेज योर स्ट्रेस। हॉबीज प्रोवाइड ए ब्रेक फ्रॉम एवरीडे स्ट्रेस एंड हेल्प यू टू रिलैक्स। अभी तक तो हमने ये बात की कि स्ट्रेस को आप अपने लेवल पे कैसे हैंडल कर सकते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने लेवल पे अपनी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को, उसको मैनेजमेंट को आप अपने लेवल पे हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। देयर आर सर्टेन एजेंसीज, सर्टेन पीपल, सर्टेन एवेन्यूज जिनको आप टैप कर सकते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू आर मेडिकल हेल्प। इफ द स्ट्रेस इज इम्पैक्टिंग योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इट्स इम्पोर्टेंट टू सीक मेडिकल हेल्प। Your doctor can recommend different treatments or refer you to a specialist. At times, it definitely helps to see a specialist to manage your stress levels. अगर आप अपने लेवल पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा आप योगा और मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। Joining yoga and meditation classes can help you to learn new techniques for managing stress, and they are time-tested and proven techniques. These classes can provide you a supportive environment and help to create a routine. Support groups. कभी-कभी क्या होता है ना कि आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कभी-कभी जो सोल्यूशन जो है ना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। आप लोगों से बात करें, कुछ लाइक माइंडेड लोगों से बात करें, उनका सपोर्ट लें। बात करने से कई बार ना आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। Joining a support group can help to manage stress. Support groups can provide a sense of community and a safe space to talk about stress. और ये डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। You can also try reading self-help books. You know, reading books is a very calming exercise which lowers your stress levels.
reading self-help books can provide useful strategies for managing stress. These books can help to develop new coping skills and change negative thought patterns. आप ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। एक उठाइए, आप जो आपको लगे आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, एक ऐसी किताब लीजिए, उससे कुछ जो टेक्निक्स आप हैं आप अप्लाई कीजिए। आई एम श्योर आपको डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट उसका मिलेगा। इसके अलावा आप स्लीप थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं। देयर आर स्लीप थेरेपिस्ट। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन द एंटायर गैमेट ऑफ इश्यूज दैट हेल्प्स यू इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इफ लैक ऑफ स्लीप इज इम्पैक्टिंग योर स्ट्रेस लेवल्स ना, स्लीप थेरेपी कैन डेफिनेटली बी हेल्पफुल। A sleep specialist can provide you recommendations for improving sleep quality. And believe me, आप इसको ट्राई करके देखें। स्लीप इज द बोलते हैं रामबाण औषधि है आपके स्ट्रेस लेवल्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मैसेज थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं। आप कभी कभार ऑफिस से जब वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी स्टिफ होती है, आपका सिर दर्द कर रहा होता है। तो वो पुराने टाइम पे आपने देखा होगा कोई भाई बहन या माँ या कोई आपका रिलेटिव आपके जब आपका सिर दबा देता था या आपके थोड़ी सी मसाज कर देता तो आपको काफी रिलीफ मिलता था स्ट्रेस से। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे to handle your or how to manage your stress levels. So this is something you can definitely think of giving a try. Well, last में मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हर एक की जिंदगी का हिस्सा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हाउ वी मैनेज इट इफेक्टिवली फॉर ए हेल्थी लाइफस्टाइल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। साथ में मैंने आपको तरीके भी बताए कि आप अपने लेवल पे उसको कैसे एड्रेस कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो। साथ में मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया कि अगर आप अपने लेवल पे इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास सर्टेन रिसोर्सेज होते हैं जो कि आप टैप कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में। ये हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे स्पेशलिस्ट की बात की, स्पीच थेरेपिस्ट की बात की, डॉक्टर की बात की, योगा मेडिटेशन की बात की। तो आप डेफिनेटली अगर अपने लेवल पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी जरूर सोचिए और उसको ट्राई कीजिए। इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इट्स इम्पोर्टेंट टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सीक सपोर्ट व्हेन नीडेड। जब जरूरत हो तो एडवाइस और सपोर्ट जरूर लीजिए। रिमेंबर टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, practice mindfulness, set boundaries, and practice gratitude to manage your stress effectively. So, don't worry, make your stress levels manageable and be happy. So, अगली बार जब तक हम मिलते हैं तब तक ऑडियोस बाय दिस इज योर होस्ट CM त्यागी।